Good morning, friends. Welcome to my 50th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding set. I have told that set is a combination, it's a collection of related items. Next, it's a collection of well-defined items. Next, we have discussed sets are of two types. One is disjoint set, another is overlapping set. What is a disjoint set? A disjoint set is two sets where they do not have any common elements. If two sets do not have any common elements, those are known as disjoint sets. If two sets have some common elements, then they are known as overlapping sets. So we are discussing regarding calculation of number of elements in case of disjoint set and in case of overlapping set. In case of disjoint set, the number of elements can easily be found out. It is just by adding the number of each set. Next, but in case of overlapping set, how to compute number of elements? We are discussing regarding this. Okay, so before discussing details regarding it further, let me first share my screen with you. Then thereafter we will discuss detail regarding this. Okay, 1 second please. Okay, friends. So we are discussing regarding number of elements in a set. First, we have discussed regarding two sets. In case of two sets, how to calculate number of elements of A union B. What is A union B? It's two sets. दो सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते थे? मैं बताया था सेट दो तरह का हो सकता है. कौन कौन सा दो तरह का, ये सब हम बात कर चुके थे. थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं. फर्स्ट सेट इज, अगर सेट इस तरह का दो सेट है, सेट ए है, सेट बी है, ये सेट ए है और सेट बी है, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या? नहीं, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है. अगर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट. In this case, suppose number of elements in A is equal to 10 and number of elements in B is equal to 5. So हमको क्वेश्चन पूछता है find the number of elements in case of A union B. It will be very simple. That will be n of A plus n of B. That is equal to how much? 10 plus 5, that is equal to 15. So it is the case of disjoint set. But there can be overlapping set. What is overlapping set? Overlapping sets are those sets where there are some common elements. जहां पर कोई common elements होगा उसको बोलेंगे overlapping set. देखते हैं what is overlapping set. How overlapping set is confirmed? First, overlapping set. In case of overlapping set, there are two sets, set A and set B. This is set A, this is set B, and they are overlapped. If they are overlapped, that means they have some common elements. What is the common element? This one is the common element. Okay. In this case, suppose n of A is equal to 10 and n of B is equal to 5. We have to calculate n of A union B. It will be a separate formula will be used, that is n of A plus n of B minus n of A intersection B. What is A intersection B? This is A intersection B. n of A intersection B हमको चाहिए. Suppose this one is 2. अगर ये 2 है तो what will be n of A union B? n of
ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 10 प्लस एन ऑफ बी 5 माइनस कॉमन एलिमेंट. व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट, 2, that is equal to 10 plus 5 15 minus 2, that is equal to 30. So we have already discussed how to compute the number of elements in case of disjoint set and in case of overlapping set. It is a case of two sets, A and B. Today we will discuss if there are three sets, A set, B set, C sets, how to compute n of A union B union C. So लिखेंगे अभी in case of three sets. हेडिंग कीजिए in case of three sets. We have to calculate what, n of A union B union C. इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे अभी देखेंगे. ओके, ये जो थ्री सेट है ये दो तरह का हो सकता है. कौन कौन सा दो तरह का मैं बताया था अभी. पहला हो सकता है देयर कैन बी डिसजॉइंट सेट. व्हाट इज डिसजॉइंट सेट, नो कॉमन एलिमेंट्स. तीन सेट है सब डिसजॉइंट है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. ये सेट है, ये सेट बी, ये सेट सी. तीन सेट हो गया. एक सेट है ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी. ओके, सो यहां पर हमको अगर क्या निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट, इसको बोलते हैं कौन सा सेट, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट. यहां पर अगर कॉमन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, बहुत इजी है. एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी that is equal to n of A plus n of B plus n of C. लेकिन एग्जाम में ये आता नहीं. एग्जाम में आता है इन केस ऑफ ओवरलैपिंग सेट, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यूज. ओके, सपोज एन ऑफ ए यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 5, तो होगा 10 प्लस 5 प्लस 5 20 हो जाएगा. एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. समझ में आ रहा है क्या. तो यहाँ पर सपोज एन ऑफ ए है 10, एन ऑफ बी है 6, एन ऑफ सी है 4. तो ये कितना हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, जस्ट वी हैव टू ऐड इट, 10 प्लस 6 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 12. तो डिसजॉइंट केस में केस इज वेरी सिंपल. बट अभी हम बात करेंगे डिसजॉइंट केस नहीं, अभी हम बात करेंगे कौन से, ओवरलैपिंग सेट. ओवरलैपिंग सेट मतलब तीन सेट है लेकिन तीनों में से कॉमन एलिमेंट्स है. तो अभी इसमें कैसे निकालें. ये सेट ए है और एक सेट बी है और एक सेट सी है. तो सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है. तो सेट ए बी सी, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी. इसमें हम अगर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं, इसका एक सेपरेट फॉर्मूला है. इसको कौन सा बोलते हैं, ओवरलैपिंग सेट. इसका फॉर्मूला है, लिखिए इसका फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी हो गया माइनस. अच्छा, अभी यहां पर कॉम्बिनेशन बनाएंगे. ए का बी का कुछ कॉमन है, ए बी में कुछ कॉमन है, बी सी में कुछ कॉमन है, सी ए में कुछ कॉमन है. सारा कॉमन को माइनस करेंगे. माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी
माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन इसके साथ एक चीज ऐड हो जाएगा, व्हाट इज, देयर इज सम कॉमन एलिमेंट व्हिच इज कॉमन फॉर ए बी एंड सी। कौन सा है? ये वाला पोर्शन है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन एलिमेंट। तो ये तीनों का कॉमन एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे इसके साथ क्या, ये जो वाला पोर्शन जो तीनों का कॉमन एलिमेंट ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो इसमें ऐड करेंगे प्लस एन ऑफ A intersection B intersection C. So this is the formula for finding out the what is the A union B union C in case of disjoint set and A union B union C in case of overlapping set. Overlapping set का ये formula है। बेटा डिसजॉइंट सेट ओवरलैपिंग सेट समझ में आ गया। तो हमको निकालना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कहां पर, डिसजॉइंट सेट में, ओवरलैपिंग सेट में। उसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करेंगे। तो फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला क्या किया, पहले तीनों का एन मिला दिया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ये एक चीज हो गया। फिर क्या करते हैं, जितना कॉमन है, ए बी में कॉमन हो सकता है, बी सी में कॉमन हो सकता है, सी ए में कॉमन हो सकता है, वो सारा कॉमन को हटाए, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो सब में कॉमन है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। This is the formula for finding out the A union B union C elements of overlapping set। अभी इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बनाएंगे, फिर समझ में आएगा। दो एग्जाम्पल बनाएंगे, पहले एग्जाम्पल 1 बनाएंगे, फिर एग्जाम्पल 2 बनाएंगे। तो लिखेंगे एग्जाम्पल 1, लिखिए एग्जाम्पल 1। लिखिए ए बी सी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ए बी सी कौन सा सेट है, ओवरलैपिंग सेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एन ऑफ ए इज इक्वल टू, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 50, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 30, एन ऑफ सी इज इक्वल टू 20। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 10, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 6, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2। ये सब दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये सब कौन सा सेट है, ये सब ओवरलैपिंग सेट है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। फिर कॉमन करेंगे, कॉमन वाला सब माइनस हो जाएगा। ए बी में कॉमन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हो गया बी सी में कॉमन, नेक्स्ट एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट सी ए में कॉमन, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, प्लस तीनों का कॉमन। तीनों का कॉमन क्या होता है, ऐड हो जाता है। तीनों का कॉमन ऐड कर दो, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए क्वेश्चन में दे दिया है। एन ऑफ ए कितना है, 50 प्लस एन ऑफ बी,
एन ऑफ बी क्वेश्चन में दे दिया है 30 प्लस एन ऑफ सी क्वेश्चन में दे दिया है 20 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्लस तो नहीं, ये इंटरसेक्शन वाला सारा क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करेंगे, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 10 माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 6 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए 4 प्लस क्या करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 50 प्लस 30 प्लस 20 कितना होता है 100 माइनस 100 माइनस 6 प्लस 4, 100 माइनस 6 16 माइनस 4 20 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 82 आंसर। हमारा आंसर आ गया। हमें क्लियर, तो समझ में आ रहा है क्या, तो 3 ओवरलैपिंग सेट का कॉमन एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकलता है, हम इसके बारे में देखें। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस तीनों में कॉमन, पहले ए बी में कॉमन माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी सी में कॉमन ने माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी ए में कॉमन दैट इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, प्लस तीनों का जो कॉमन है दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही। अभी इसके ऊपर एक प्रॉब्लम बनाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2 और एक क्वेश्चन करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, सो एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स read physics, कितने स्टूडेंट्स, क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, उसमें से 15 स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट कमा 20 स्टूडेंट्स रीड केमिस्ट्री, 20 स्टूडेंट केमिस्ट्री लिए हैं, वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट एंड 20 स्टूडेंट रीड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो एक क्लास है, उसमें 50 स्टूडेंट्स है, 15 स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री रखें, कुछ ऐसे हो सकते हैं केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रखें, कुछ ऐसे हो सकते हैं तीनों सब्जेक्ट रखें, कुछ ऐसे हो सकते हैं बिल्कुल कोई सब्जेक्ट नहीं रखें, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट को रखें। समझ में आया, ऐसा भी हो सकता है, बॉटनी केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी वो सब पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया, वो सब हो सकता है। तो लिखेंगे फुल स्टॉप, तो लिखेंगे 3 स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लिखेंगे 3 स्टूडेंट्स रीड, 3 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फुल स्टॉप। नेक्स्ट 6 स्टूडेंट्स रीड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 6 स्टूडेंट्स
read chemistry and mathematics. Full stop. Next, अच्छा, 5 students read mathematics and physics. Full stop. 5 ऐसे स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं. नेक्स्ट, 7 स्टूडेंट्स read none of the subject. What is none of the student subject? वो क्या क्या नहीं पढ़ते हैं? फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, वो कुछ और सब्जेक्ट पढ़ते हैं. बॉटनी हो सकता है, जूलॉजी हो सकता है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, आईटी हो सकता है, वो सब पढ़ रहे हैं. ठीक है, फुल स्टॉप. तो टोटल 50 स्टूडेंट से 50 में से 7 ऐसे स्टूडेंट है जो ये तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं. तो कितना लोग ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं? 50 - 7 43 लोग ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं. फुल स्टॉप. नेक्स्ट, तो लिखेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड all the 3 subject, all the 3 subjects, all the 3 subjects मतलब that is फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और मैथ भी पढ़ते हैं. उसको निकालना है. ये सेट का एक क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन है, ओवरलैपिंग है. तो इस तरह का केस में पेज से सॉल्यूशन करते हैं. पहले तीनों को ए बी सी में रिप्रेजेंट करेंगे. तो लिखेंगे लेट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन से लिखिए लेट ए इज द student is the set of students. A is the set of students reading. A is the set of students reading physics. So what is the number of students who read physics? 15 students read physics. So therefore n of A is equal to how much? 15. हो गया. जैसे ये लिए फिजिक्स पढ़ते हैं, सिमिलरली लिखो लेट B is the set of students reading. सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री. तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू हाउ मच? कितना स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं? 20 स्टूडेंट्स, 20. तो पहला वाला गया फिजिक्स, फिजिक्स इज इक्वल टू ए. फिर लिया केमिस्ट्री इज इक्वल टू बी. नेक्स्ट, let's see is the set of students reading third subject. What is third subject? Mathematics. Now n of c कितना है? n of c mathematics कितना पढ़ता है? 20 students read mathematics, so 20. so mathematics is equal to c. ये ठीक है. तो अभी देखते हैं, ये बोलता है 3 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो लिखेंगे टू स्टॉप द स्टूडेंट्स who read physics and chemistry both
मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में वो कॉमन है। फिजिक्स को बोलते हैं क्या ए, केमिस्ट्री को बोलते हैं क्या बी, तो ए बी में बोथ है, दैट इज कॉल्ड टू ए इंटरसेक्शन बी। बोथ मतलब कॉमन। कितना है, कितना ऐसे स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स रीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 3। सिमिलरली therefore the students who read, second question, chemistry and mathematics, बोथ, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं। बेटा केमिस्ट्री को क्या बोले हैं, केमिस्ट्री को बोले हैं सर बी, मैथमेटिक्स को क्या बोले हैं सी, तो ये हो गया बी और सी में कॉमन, बी इंटरसेक्शन सी। कितना स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री मैथ, तो दैट इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट सिमिलरली द स्टूडेंट्स who read mathematics and physics, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। बेटा मैथमेटिक्स को क्या बोले हैं सी, फिजिक्स को क्या बोले हैं ए, तो सी इंटरसेक्शन ए, सी ए में कॉमन कितना है, अच्छा 5 स्टूडेंट्स रीड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 5 हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, तो लिखेंगे, तो एक क्लास है, ये क्लास है, उसमें 3 तरह का स्टूडेंट्स है, ये क्लास है, ये क्लास में नंबर कितना है 50, u इजिकल टू 50, उसमें 3 तरह का स्टूडेंट्स है, कौन कौन सा, कुछ फिजिक्स पढ़ते हैं सेट ए, कुछ केमिस्ट्री पढ़ते हैं सेट बी, कुछ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं सेट सी। तो तीनों तरह का है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये तीनों में से एक, तीनों एक कुछ पढ़ते हैं, तीनों क्या पढ़ते हैं, तीनों कौन है जो कॉमन पढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन कॉमन तीनों पढ़ते हैं, मतलब फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं, ये कॉमन में तीनों में है ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर लिखेंगे इसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज इक्वल टू 50, इसको बोलते हैं एन ऑफ यू, यू मतलब टोटल, यूनिवर्सल सेट का वैल्यू है 50। अच्छा कितना स्टूडेंट्स कोई भी कोर्स नहीं पढ़ता है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 स्टूडेंट्स रीड नॉन ऑफ द कोर्स, नॉन ऑफ द कोर्स, ये स्टूडेंट हो गया है, इसको कोर्स बना दो, नॉन ऑफ द कोर्स, सेवन स्टूडेंट्स रीड नॉन ऑफ द कोर्स, कोई भी कोर्स नहीं पढ़ते हैं, कितना 7, 7 स्टूडेंट्स रीड नॉन ऑफ द कोर्स, कोर्स कोई भी कोर्स नहीं पढ़ते हैं, कितना 7 स्टूडेंट्स। तो अभी देखेंगे 7 स्टूडेंट्स रीड नॉन ऑफ द कोर्स, तो लिखेंगे therefore the number of students who read neither, neither मतलब
neither physics nor chemistry nor mathematics, that is नॉन, कोई भी कोर्स नहीं पढ़ते हैं इसमें से। तो कितना है वो? 7। बेटा टोटल है 50, उसमें से 7 बिल्कुल ये तीनों में नहीं पढ़ते हैं। तो नहीं पढ़ते हैं तो कितना पढ़ते हैं? जितना पढ़ते हैं उनको बोलते हैं 50 - 7, दैट इज इक्वल टू 43। तो लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स reading either physics or chemistry or math is equal to आइदर ये होगा चलेगा, ए का पूरा चलेगा, बी का पूरा चलेगा, सी का पूरा चलेगा, इसको बोलते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इजिकल टू टोटल 50 थे, 7 कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब 43 आइदर ये पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, या नहीं तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, नहीं तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है? How many students read all the 3 subjects? क्वेश्चन पूछा है how many students read all the 3 subjects? All the 3 मतलब that is they read physics and chemistry and mathematics। फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये तीनों का कॉमन एलिमेंट है, जिसको बोलते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका वैल्यू हमको निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में तो सारा चीज दे दिया है, हमको क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन में से हमको पुट करना है सारा वैल्यू, ये वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे इन द क्वेश्चन आज ए बी सी आर ओवरलैपिंग सेट, वी नो दैट, हमको पता है। क्या पता है? लिखेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है ओवरलैपिंग सेट का? अभी पढ़े थे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस कॉमन वाला माइनस करेंगे। पहले ए बी का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी, फिर कॉमन किसका? बी सी का कॉमन, बी इंटरसेक्शन सी, फिर कॉमन किसका? सी ए का कॉमन, ठीक है, प्लस ऐड करेंगे क्या? तीनों का कॉमन, तीनों का कॉमन मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सब वैल्यू हम पुट कर देंगे और निकल जाएगा। अच्छा, पहले ढूंढेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, बेटा यहाँ पर देखो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है? 43। 43 इजिकल टू, क्वेश्चन पूछ रहा है एन ऑफ ए, एन ऑफ ए ढूंढो, कहां पर क्वेश्चन में है एन ऑफ ए? एन ऑफ ए, एन ऑफ ए है, एन ऑफ ए है 15, फिर एन ऑफ बी है 20, एन ऑफ सी है 20, तो तीनों को ऐड करना है। तो पहले क्वेश्चन पूछ रहा है एन ऑफ ए 15, अभी देखें, प्लस एन ऑफ बी अभी देखे हैं 20, प्लस एन ऑफ सी अभी देखे हैं 20, माइनस ये गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा ए इंटरसेक्शन बी तो अभी निकाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कितना है? यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी 3 है,
बी इंटरसेक्शन सी 6 है, सी इंटरसेक्शन ए 5 है। तो कितना कितना वैल्यू है, 3 6 5। ए इंटरसेक्शन बी 3, बी इंटरसेक्शन सी 6, सी इंटरसेक्शन ए 5, 3 6 5। तो ए इंटरसेक्शन बी 3 माइनस बी इंटरसेक्शन सी 6 माइनस सी इंटरसेक्शन ए 5 प्लस किसका, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, ये तो वैल्यू नहीं दिया है, इसको तो निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और 43 इजिकल टू, इसको मिलाइए, 15 20 20, ये हो गया कितना 55 माइनस ये कितना हो रहा है, -3 -6 -14 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, और 43 इजिकल टू ये 55 माइनस 14 इट इज इक्वल टू 41 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल टू 43 माइनस 41, ये 41 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, इजिकल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2। 43 माइनस 41 कितना 2। इसका मतलब कितना स्टूडेंट्स तीनों सब्जेक्ट लिए हैं, 2 स्टूडेंट्स तीनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 2 students who read physics and chemistry and mathematics. आंसर, 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, क्या निकालना है। पहले ये क्वेश्चन में हमको दिया था कॉलेज में एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, 50 में से 7 स्टूडेंट, टोटल 50 स्टूडेंट्स थे, 7 स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो कितना स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 43 स्टूडेंट्स आइदर फिजिक्स पढ़ते हैं या नहीं तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, नहीं तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स को ए लिए, फिर केमिस्ट्री को बी लिए, मैथमेटिक्स को सी लिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ते हैं 15, एन ए दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं 20, एन बी दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं सी 20, तो एन सी दिया हुआ है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन वाला देते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कितना है, ए इंटरसेक्शन बी 3, केमिस्ट्री पढ़ते हैं मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, बी इंटरसेक्शन सी 6, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स पढ़ते हैं, सी इंटरसेक्शन ए 5। सब कुछ दे दिया है। अभी क्वेश्चन पूछा है कितना स्टूडेंट्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तीनों सब्जेक्ट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हम क्या किए, ये तीनों ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट मतलब इनका कॉमन वैल्यूज है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमको पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस, ये इंपोर्टेंट है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है क्या, ये फॉर्मूला डाला, सारा वैल्यू को निकाल दिया, फिर बाद में आया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2। okay, so in this fashion we can calculate number of elements in case of overlapping set. Okay, with this we will conclude our discussion on set. Okay, before concluding my session, let me first tell you, if you have not subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel. My channel is, my YouTube channel is Commerce Forum. Commerce Forum. Okay, and if you have
if you have not subscribed my channel, kindly subscribe it. Once you subscribe it, kindly press the bell icon so that you will get all the latest videos as and when I'll upload it in YouTube. Okay, and press the like button if you like my videos. And if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamishra, BISWOMISHRA @gmail.com. Thank you. Thank you all. Thank you for watching my videos. Thank you. Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you.